ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کرد مندی چینل کے ناظرین، میں اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سناتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کرد مندی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ کو امیر اہل سنت کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ کرد مندی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آپ لوگوں سے ہم سوال کرتے ہیں، آئیے آپ کے سوال کی جانب۔ بچوں کی شام۔ جی کرد مندی چینل کے ناظرین، میرا آپ لوگوں سے جو آج کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آج میرا سوال ایک شعر کی فارم کے اندر ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ شعر مکمل کریں اور یہ بھی بتائیں کہ یہ نعت کس نے لکھی ہے۔ میں آپ کو سوشل میڈیا لنک بھی دیتا ہوں، ہمارے یوٹیوب
تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، یوٹیوب، ٹویٹر، اس پہ ہمارا کڈز متی چینل کے نام سے اکاؤنٹ ہے. لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں. کڈز متی چینل کے ناظرین، آگے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں کی شام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جینے کی طرف دے نہ مرنے کی طرف دے، جب چوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دے. کیا بات مدینے کی، اے ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عرش اولا سے اعلیٰ، عرش اولا سے اعلیٰ، میٹھے نبی کا روزہ. عرش اولا سے اعلیٰ،
बरकतें नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। किड्स मदीना चैनल के नाज़रीन, आइए आप लोगों की कुछ कॉल शामिल करते हैं। बच्चों को शाम बहुत अच्छा लगता है। आज के सवाल का जवाब है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये नात आला हज़रत की है। आपने सवाल का जवाब दिया, दुरुस्त जवाब हम आखिर में बताएंगे। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम शाहजहान है, मैं शाहपुर जहाना से बात कर रहा हूँ। मैं आपको ईमान मुजवल सुनाऊंगा। ईमान मुजवल, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुन बिल्लिसान व तस्दीकुम बिलक़ल्ब। किस मदीना चैनल हमारा मन है। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमजा भाई आपने ही पढ़ी थी तो सुना देना। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुन बिल्लिसान व तस्दीकुम बिलक़ल्ब। इक़रारुन बिल्लिसान व तस्दीकुम बिलक़ल्ब। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। किड्स मदीना चैनल के नाज़रीन, आइए देखते हैं इस्लाम फॉर किड्स का प्रोमो। प्यारा सा प्रोग्राम लेकर आए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है कुरान पाक को दुरुस्त पढ़ना आ रहा है आपको। हुरूफ़े हल्की कितने हैं? अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। अकायद के बारे में मालूमात हो रही है। पुल सिराज जो है ना, वो एक तरह का पुल है जो कि जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। आखिरी सेगमेंट होता है प्यारे अंबिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि तुम अल्लाह को एक मानो। कुछ कॉल की जानी पड़ते हैं। कि बच्चों का सेगमेंट शुरू करने का एक मकसद ये भी है कि बच्चों के अंदर नात पढ़ने का शौक पैदा हो। देखिए प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स मंडे से थर्सडे और सैटरडे लाइव मदीना मुनव्वरा में दोपहर 1 बजे और पाकिस्तान में दोपहर 3 बजे सिर्फ मदनी चैनल पर। हमजा भाई आइए आपकी जाने बढ़ते हैं, जिसका नाम है आए अरबी सीखे। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप हमें क्या सिखा रहे हैं हमजा भाई? आज मैं आपको कुछ ऐसे अल्फाज सिखाऊंगा जिसका दारो मदार हमारी तालीम पे होता है, जिसके ज़रिए हम अपनी तालीम में आसानी हो सकती है जी। मगर आज के अल्फाज से पहले हम कल का सबक रिवाइज़ कर लेते हैं जो कल हमारे फुज़ैल भाई ने पढ़ाया था। चलें जी, कल का सबक किस किस ने याद किया था जी? अच्छा, आपसे कोई बता दे फ्रिज को अरबी में क्या कहते हैं? सब साथ बता दें। सब साथ ही बता दें। जी, सल्लाजा। सल्लाजा। और बोतल को अरबी में क्या कहते हैं? करूरा। माशाअल्लाह, बोतल को अरबी में कारूरा कहते हैं जी। सल्लाजा के अंदर करूरा है जी, ये जुमला बन गया अच्छा सा जी। अब आए बढ़ते हैं आज के जुमलों की जानिब जी। कापी को कहते हैं कुर्रासा। क्या कहते हैं? कुर्रासा जी। आप जो हमें जुमले या अल्फाज सुनाए वो आप कलम और रसास से कुर्रासा में लिख सकते हैं जी। बढ़ते हैं आज की
अल्फाजों की तरफ। जी, पहला हमें क्या नज़र आ रही है? ये कॉपी। जी, कापी नज़र आ रही है। अब देखते हैं कापी को अरबी में क्या कहते हैं। यहीं पे लिखा हुआ है कुर्रासा। क्या कहते हैं? कापी को अरबी में क्या कहते हैं? जी, कापी को अरबी में क्या कहते हैं? जी, अगली तस्वीर दिखाइएगा। ये हमें स्केल नज़र आ रही है। जी, स्केल। स्केल को अरबी में मिस्तरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मिस्तरा। स्केल को अरबी में क्या कहते हैं? मिस्तरा। जी, स्केल को अरबी में मिस्तरा कहते हैं। जी, अगली तस्वीर दिखाइएगा। जी, ये हमें पेंसिल नजर आ रही है और पेंसिल को अरबी में क्या कहते हैं? कलमुर रसास। क्या कहते हैं? जी, पेंसिल को अरबी में क्या कहते हैं? जी, दोबारा दिखाइएगा। कुर्रासा यानी कापी। कापी को अरबी में क्या कहते हैं? जी, कापी को अरबी में कुर्रासा कहते हैं। जी, अगली तस्वीर दिखाइएगा। मिस्तरा। स्केल को अरबी में मिस्तरा कहते हैं। क्या कहते हैं? जी, स्केल को अरबी में मिस्तरा कहते हैं और पेंसिल को अरबी में कहते हैं कलमुर रसास। क्या कहते हैं? जी, पेंसिल को अरबी में कलमुर रसास कहते हैं। जी, पहली तस्वीर दिखाइएगा। कुर्रासा कापी को कहते हैं। किसको कहते हैं? कुर्रासा। कापी को अरबी में क्या कहते हैं? कुर्रासा। जी, कापी को अरबी में कुर्रासा कहते हैं और स्केल को अरबी में क्या कहते हैं? मिस्तरा। जी, स्केल को अरबी में मिस्तरा कहते हैं। सब याद कर रहे हैं या नहीं? जी, स्केल को अरबी में मिस्तरा कहते हैं। मिस्तरा। जी, और पेंसिल को अरबी में क्या कहते हैं? जी, कलमुर रसास। इसको हम एक बार और याद कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से याद हो जाए। जी, बिल्कुल। कापी को कहते हैं कुर्रासा। क्या कहते हैं? कुर्रासा। जी, और स्केल को क्या कहते हैं? मिस्तरा। मिस्तरा। स्केल को क्या कहते हैं? मिस्तरा। मिस्तरा कहते हैं। जी, और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा। पेंसिल को कहते हैं कलमुर रसास। जी, कलमुल रसास। जी, अब यहाँ मौजूद हाजरीन से सवालात कर लेते हैं। जी, पहले हमजा भाई आप बताएं सबसे पहले किससे पूछना है और क्या पूछना है? सबसे पहले हमारे हुज़ैफा भाई से पूछ लेते हैं। भाई चले बताएं। हुज़ैफा भाई, आज जो हमने 3 अल्फाज सीखे हैं इसमें से आप किसी का भी जुमला बना के बता दें। कलमुर रसास से हम कॉपी में लिखते हैं। जी, कलमुर रसास से हम कॉपी में लिखते हैं, या इसको इस तरह भी कर सकते हैं, कलमुर रसास से हम कुर्रासा में लिखते हैं। जी, अच्छा, अब इनसे ले लेते हैं। आप बताएं स्केल को क्या कहते हैं अरबी में? मिस्ता। इनका जवाब दुरुस्त है? जी, इनका जवाब दुरुस्त है। जी, माशाअल्लाह। अच्छा, अब इनसे भी ले लेते हैं। ये हाथ उठाए हुए इन्होंने। सीधे हाथ से। जी, आप बताएं पेंसिल को अरबी में क्या कहते हैं? कलमुर रसास। हाँ, माशाअल्लाह, पेंसिल को अरबी में कलमुर रसास कहते हैं। जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। ठीक है मदी चैनल के नाज़रीन, आइए आज हम लोगों ने हमजा भाई से अरबी के अल्फाज भी सीखे। आइए आप लोगों की कुछ कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम मनीषा है और मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मैं आज अरबी के अल्फाज सुनाऊंगी। फिरिस को अरबी में चल्ला कहते हैं और बोतल को अरबी में कारूरा कहते हैं। जी, इनके जवाब दुरुस्त है या नहीं हमजा भाई? जी, इनके जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम भाईजान मोल है। मैं पंजाब के शहर दिनगाह से बात कर रही हूँ। आज मेरी दूसरी कॉल है। आज मैं आपको अरबी के अल्फाज सुनाऊंगी। जमीन को अरबी में अर्दुन और आसमान को अरबी में समान कहते हैं। किस मर्जी चैनल? हमारा मर्जी चैनल। जी, आज आपकी दूसरी कॉल थी और आपने हमें अरबी के अल्फाज सुनाए। हमजा भाई आप बताएं इनके अरबी के अल्फाज दुरुस्त है या नहीं? जी, इन्होंने ज़मीन का तो दुरुस्त फरमाया और आसमान का इन्होंने, आसमान को अरबी में समाउन कहते हैं। समाउन। चले ये आप लिख लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम नूरलान है। मैं जिला चकवाल के शहर चौसा दिलशाह से बात कर रही हूँ। मैं इस नात के शेर को मुकम्मल करना चाहती हूँ। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले। जज़ाकल्लाह खैरा। ये आपने हमें सवाल का जवाब दिया। जो इसका दुरुस्त जवाब है वो हम प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम आमना तारिया है। मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको सवाल का जवाब दूंगी। चमक तुझसे पाते हैं
सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी आपने हमें सवाल का जवाब दिया, हम दुरुस्त जवाब हम आखिर में बताएंगे। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम भानिया असम है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको अपना मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, यारा ने नबी जन्नती जन्नती, हसन और सैन भी जन्नती जन्नती। ये बच्चों की शाम का सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। जी आपको हमारा प्रोग्राम बच्चों की शाम अच्छा लगता है तो दूसरों को भी इसकी दावत दें। ये थी कुछ कॉल जिन्होंने अरबी सुनाई, उन्होंने कुछ ने आज के सवाल का जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं नज़म टाइम की जानिब। बच्चों की शाम, एक बकरी कहीं जा रही थी, एक बकरी कहीं जा रही थी, एक बकरी कहीं जा रही थी, रास्ते में उसे भूख लगी, सामने एक दरख्त नजर आया, उसने दरख्त के पत्ते खाने की कोशिश की, मगर पत्ते बहुत ऊपर थे। बकरी परेशान होकर इधर उधर देखने लगी, कहीं से एक ज़राफ़ा उधर आ निकला। बकरी ने ज़राफ़े से मदद को कहा, ज़राफ़ा बहुत लंबा था, उसने आसानी से पत्ते तोड़ के बकरी को दे दिए। बकरी ने पत्ते खाए और ज़राफ़े का शुक्रिया अदा किया। एक बकरी कहीं जा रही थी। प्यारे बच्चों, हमें ये सबक मिला कि हमें भी परेशान लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जरूरतमंद के काम आने और उसकी परेशानी में मदद करने वाले को अल्लाह पाक बहुत पसंद फरमाता है। और अगर हमारी कोई मदद करे तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी बिल्कुल, इस नज़म से हमें बहुत प्यारा सबक मिला। आगे बढ़ते हैं, हम आप लोगों से सवाल करते हैं मगर हमें यहाँ मौजूद हाज़रीन से भी सवालात करने होते हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने इनके लिए सेगमेंट रखा है इम्तिहान आपकी अकल का। बच्चों की शाम, जी किड्स मंथली चैनल के नाज़रीन अब हम आ चुके हैं हमारे अगले सेगमेंट पे, जिसका नाम है इम्तिहान आपकी अकल का। मेरा पहला शेर ये है कि मशहूर सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, इसके राइटर इसको किसने लिखा है? अमीर आले सुन्नत के या आला हजरत इमाम अहमद रजा खान? मैं एक बार सवाल रिपीट कर देता हूँ। मशहूर सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, इसके राइटर यानी इसको लिखने वाले कौन है? अमीरा आले सुन्नत या आला हजरत इमाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह? चने अमीर आले सुन्नत या इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह? अमीर आले सुन्नत। चने आप बताएं, सोच ले, कंफर्म। अल्लाहु अकबर, आपसे एक गलती हो गई है। इसका सही जवाब है इमाम अहमद रजा खान। हाँ अल्लाह। आइए मैं अगला सवाल करता हूँ। अब माइक रखें बस। चले, कौन सी नमाज के अंदर सिर्फ 3 रकात फर्ज हैं? कौन सी नमाज के अंदर सिर्फ 3 रकात फर्ज है? चले आप अपने भाई याया भाई को दीजिए।
वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी याया भाई जवाब दें। इशा में। इशा में? याया भाई एक बार सवाल रिपीट कर दूं? जी। कौन सी नमाज में सिर्फ 3 रकात फर्ज होती है? इशा में। इशा में। चले आप अपने पार्टनर को दीजिए, आपको आते हैं? चले आप बैठ जाएं। जी कौन देगा सवाल का जवाब? ज़ेबा भाई चले आप दे दें। मगरिब। मगरिब की नमाज में आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान पाक को छूने यानी टच करने से पहले क्या करना जरूरी है? या भाई आप माइक इनको दीजिए। वजू। वजू। आपका नाम क्या है पहले? मोहम्मद उस्मान। माशाअल्लाह। उस्मान भाई चले आप बताएं, सवाल का जवाब बताएं। वजू। वजू। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह। वजू होता है, आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। अल्लाह। वो कौन सा हुरूफ है जिसको बिल्कुल सीधा लिखते हैं और इसके अंदर पेंसिल कहीं भी इधर उधर घुमानी नहीं है? कौन सा हर्फ है जिसको बिल्कुल सीधा लिखा जाता है, पेंसिल कहीं भी इधर उधर नहीं घुमानी? अलिफ। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अलिफ के अलावा नंबर 1 भी हो सकता है। नंबर 1 भी हो सकता है, अलिफ के अलावा नंबर 1 भी हो सकता है। अच्छा मैं अपना थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन करता हूँ आप लोगों से। अगर एक शख्स है जो रोजाना 100 रुपए कमाता है और उसमें से 90 रुपए खर्च कर देता है, तो बताएं पूरे मंथ में उसके पास कितने रुपए जमा हो? कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? हमजा भाई आप दे। 300 रुपीज। कंफर्म है आप? जी। कहीं 10 रुपए कम तो नहीं? चले इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किस्मती चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट इम्तिहान आपकी अक्ल का। आइए बढ़ते हैं गुलाम रसूल भाई की तरफ कि आज वो हमें क्या सिखा रहे हैं। पॉपकॉर्न वाला आ गया भाई, पॉपकॉर्न वाला। गरम गरम पॉपकॉर्न ले लो। पॉपकॉर्न वाला आया, पॉपकॉर्न वाला। पॉपकॉर्न वाला, पॉपकॉर्न वाला। जल्दी जल्दी आ जाओ, गरम गरम पॉपकॉर्न ले लो। पापा प्लीज मुझे भी पॉपकॉर्न खाने हैं, मुझे पैसे दीजिए। बबलू बेटा जिद नहीं करते, और रोज रोज पॉपकॉर्न खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नहीं ना बाबा, मुझे पैसे चाहिए और मुझे पॉपकॉर्न खाने हैं। अच्छा ये लो। अंकल 10 रुपए के पॉपकॉर्न दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बबलू भाई, सबसे पहले आपको पॉपकॉर्न वाले अंकल को सलाम करना चाहिए था। जी वो मैं भूल गया था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बबलू भाई, आप रोज पॉपकॉर्न खाते हैं? जी हाँ नोमान भाई, मैं तो रोज पॉपकॉर्न खाता हूँ, और जब बाबा पैसे नहीं देते तो मैं जिद करके ले लेता हूँ। लेकिन बबलू भाई, जिद करना तो अच्छी बात नहीं होती, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। जज़ाकल्लाहु खैरा गुलाम रसूल भाई, मैं आइंदा जिद नहीं करूँगा। मेरे पॉपकॉर्न दो। फैजान भाई मेरे पॉपकॉर्न दो। फैजान भाई इधर आइए। रुकिए फैजान भाई। नोमान भाई, किसी को तकलीफ पहुंचे तो हमें हंसना नहीं चाहिए, ये बुरी बात है। और आवाज से हंसना कह कहा कहलाता है, और कह कहा शैतान की तरफ से होता है। मेरे पॉपकॉर्न दो, पॉपकॉर्न दो मेरे। फिलहाल मेरे पॉपकॉर्न दो। ये मेरे पॉपकॉर्न है। मुझे पता है ये पॉपकॉर्न आपके हैं। मैं तो बस कल वाला बदला ले रहा था, जब आपने कल हमें भूत बनकर डराया था।
बुरी बात, ये उठाइए, ये तो रिस्की बेहुरमती है। हमें अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करनी चाहिए। फैजान भाई, बदला लेना कोई अच्छी बात नहीं है, और कल तो बबलू भाई से बस हो गया था, उनका तो कोई इरादा भी नहीं था आपको डराने का। और फैजान भाई, अगर ऐसा हो भी जाए तो मुआफ कर देना चाहिए। आपको मालूम है मुआफ करने की फजीलत क्या है? गुलाम रसूल भाई, माफ करने की फजीलत? जी, माफ करने की बड़ी फजीलत है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए अल्लाह, तेरे नजदीक कौन सा बंदा ज्यादा इज्जत वाला है? फरमाया, वो जो बदला लेने की ताकत के बावजूद माफ कर दे। सुभान अल्लाह। और अमीर आला सुन्नत ने अफू दरगुजर की फजीलत यानी माफ करने की फजीलत पर एक किताब भी तहरीर की है। माशा अल्लाह, हमारे घर में एक किताब लाजमी होनी चाहिए। गुलाम रसूल भाई, बस बच्चे कुत्तों को पत्थर मारते हैं। कुत्तों को पत्थर मारने से गुनाह तो नहीं मिलता। नुमान भाई, कुत्ता या किसी भी जानवर को बिना वजह तकलीफ पहुंचाना नाजायज है। अमीर आले सुन्नत फरमाते हैं, बिना वजह कुत्तों को मारना जुल्म है। नुमान भाई, याद रखिए, जानवर की बद्दुआ भी मकबूल है। अपना ये ज़हन बना लीजिए कि ना कुत्ते को मारना है और ना ही बिल्ली और चूंटियों को, इसलिए कि चूंटी को भी बिला वजह मारना नाजायज गुनाह है। अरे, ये बबलू भाई कहाँ रह गए? नहीं बबलू भाई, नहीं, कुत्ते को नहीं छेड़े, ये आपके पीछे लग जाएगा। नहीं गुलाम रसूल भाई, ये कुत्ता मेरी नकल उतार रहा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। नहीं बबलू भाई, नहीं। बबलू भाई, बचाओ! जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था गुलाम रसूल भाई ने हमें बताया कि हमें कुछ भी नीचे से गिर जाए खाने का सामान तो हमें उठा के उसको कर लेना चाहिए। आइए किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप लोगों के कुछ कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम मुक्ता है, मुझे बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी बिल्कुल, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, मुआविया और अली जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती। जज़ाकल्लाहु खैरा। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम ईशल इरफान नतारिया है, मैं अरब शरीफ से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और ये आला हजरत ने लिखा, किड्स मदनी हमारा मदनी चैनल। जी आपने हमें सवाल का जवाब दिया, जवाब हम आखिर में बताएंगे। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। नाम गुलाम मोहम्मद है, मैं तोहफा शरीफ से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आपके सवाल का जवाब ये है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका वाले। ए आला हज़रत का शेर।
جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام کے اندر کال کی، ہمیں سوال کا جواب دیا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. کڈز مدی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے پیارے صحابہ. بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے حذیفہ بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج آپ ہمیں کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاؤں گا. جی بتائیے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم پیارے صحابہ رضی اللہ عنہ کے سیگمنٹ میں ایک بہت ہی پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنیں گے، جن کا نام ہے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ. آئیے ان کی لائف کی کچھ باتیں سنتے ہیں. یہ قبیلے بنو ثقیف سے تعلق رکھتے تھے. آپ رضی اللہ عنہ بہت ہی بہادر اور جاں باز صحابی ہیں، بہت سی جنگوں میں شرکت کی. آپ رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بھی کئی لوگوں کو بیان کی. عراق کے سٹی کوفہ کے محدثین میں آپ رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے. آئیے ان کا ایک واقعہ سنتے ہیں. ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ قبرستان سے گزرے تو میں نے ایک قبر میں دھماکہ سنا. گھبرا کر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے قبر میں دھماکے کی آواز سنی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بھی اس دھماکے کی آواز سن لی؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں. ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک قبر والے کو اس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. یہ ایسی عذاب کی آواز کا دھماکہ تھا جو تم نے سنا. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس قبر والے کو کس گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شخص چغل خوری کیا کرتا تھا اور اپنے جسم اور کپڑوں کو پیشاب سے نہیں بچاتا تھا. پیارے بچوں، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ کی کرامت تھی کہ انہوں نے قبر کے اندر کی آواز سن لی، ورنہ قبر میں جو کچھ ہوتا ہے نارملی اس کی آواز عام لوگوں کو سنائی نہیں دیتی. پیارے بچوں، ہمیں بھی اپنے دوستوں وغیرہ کی چغلی نہیں لگانی چاہیے اور پیشاب کی چھینٹوں سے بھی خود کو بچانا چاہیے. اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کڈز جانے کے ناظرین، یہ تھے ہمارے حذیفہ بھائی، انہوں نے ہمیں ایک پیارے سے صحابی کے بارے میں بتایا. اللہ پاک آپ کو عالم بعمل بنائے. کڈز چینل کے ناظرین، آئیے آپ لوگوں کی مزید کو شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد خان اشرفی ہے، میں بیکانیر سے بول رہا ہوں. میں آپ کو ایک شعر مکمل کر کے سناؤں گا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے. اور یہ شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا. جزاک اللہ خیرہ. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. آپ نے سوال کا جواب دیا، درست جواب آخر میں بتائیں گے. نیکسٹ کال لیجیے گا. میرا نام مدین ہے، میں تو بڑی سے بات کر رہا ہوں. میں نعرے لگاؤں گا، آقا کا امام مرحبا ہے، پیارا پیارا مرحبا مرحبا. آقا کی زلف مرحبا مرحبا. پیاری پیاری مرحبا مرحبا. آقا کی صورت مرحبا مرحبا. پیاری پیاری مرحبا 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 مرحبا. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. مجھے بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. فضیل بھائی، میں آج آپ کو عربی کے الفاظ سناؤں گا. فریج کو عربی میں ثلاجہ کہتے ہیں، بوتل کو عربی میں قارورہ کہتے ہیں. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. آپ نے ہمارے پروگرام
بچوں کی شام کے اندر کال کی. آئیے میں نے آپ لوگوں سے شروع میں ایک سوال کیا تھا, اس کا میں آپ لوگوں کو جواب بتا دیتا ہوں. میں نے آپ لوگوں سے سوال کیا تھا, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, یہ شعر کس نے لکھا ہے, اور یہ بتائیں کہ اس شعر کو مکمل بھی کریں اور یہ بتائیں کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور یہ میں نے شعر مکمل کیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ شعر کس کا ہے. یہ کلام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے. تو جی جنہوں نے صحیح جواب دیا اللہ پاک ان کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. کڈز مدی چینل کے ناظرین, اسی طرح ہمارے آج کے پروگرام بچوں کی شام کا وقت ہوا ختم. ملیں گے آپ سے ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں فرائیڈے والے دن. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, یہاں جو ہمارے سیگمنٹس کرتے ہیں ان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, یہاں جو بچے ہیں ان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. یا اللہ تیرے ذکر سے